Hello student, this is Ajit Thoras from StudyDown Tutorial. In the last video we have covered why transcription, translation and translocation is needed. Okay, but there is one more important question for this process is why such a huge process is required to make the protein. मतलब प्रोटीन टू मेक द प्रोटीन बनाने के लिए वाई ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन ये सभी चीज़ों की ज़रूरत है. ओके, सो दिस इज द आंसर. ओके, द 3 points आंसर विच विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया वाई इट इज़ नीडेड. ओके, सो डीएनए कैरीज द जीन्स. मतलब डीएनए के पास वो जीन्स रहते हैं, वो सीक्रेट फॉर्मूला रहता है. ओके, टू मेक द प्रोटीन. Okay, basically in the previous video we talked about कि RNA के पास रहता है, but listen, DNA carries the genes. Okay, कोड रहता है to make the protein. Okay, that are essential for the life. मतलब प्रोटीन जो हमारे लाइफ के लिए essential है, इनका बनाने का जो कोड है किसके पास रहता है? DNA. So basically DNA के पास मास्टर प्लान रहता है. DNA carries the genes to make the protein that are essential to life. But DNA is our master plan and we cannot share master plan. For example, this is a hard copy, this is a main copy, okay, which I have prepared, but I cannot give this copy to all students, right? So that's why what I will do, I'll make a Xerox of this copy, right, and I'll distribute you. Same way, this is a DNA cannot go to each and every student. That's why if I do this, I will lose the main copy, right? That's why I take a Xerox. Same way, DNA carries a gene code. Okay, genes, that is a code, but it is a master plan. It can't be risked being destroyed. और ये destroy करने के लिए आगे नहीं भेजा जा सकता. Okay, so it won't leave the nucleus. Okay, so DNA nucleus नहीं छोड़ता, but DNA creates a Xerox copy. Okay. Like a RNA, okay, that is RNA, okay, but protein have to be made, right? Protein तो बनाना है और DNA ने nucleus नहीं छोड़ना है, so that's why see, but protein have to be made outside of nucleus, okay, for the repair and growth. That's why hence making an RNA copy to send out of the nucleus to solve this problem. तो ये problem solve करने के लिए मतलब डीएनए न्यूक्लियस के बाहर भी नहीं जाना चाहिए और न्यूक्लियस के बाहर प्रोटीन भी बनना चाहिए. फॉर दैट पर्पज व्हाट हैपेंस, डीएनए का जेरोक्स कॉपी विच इज आरएनए कैन बी मेड एंड इट सेंड्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, दैट्स व्हाई दिस इज द ह्यूज प्रोसेस. ओके, व्हाई डज ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अकर? ये क्यों होता है? टू मेक द डिफरेंट प्रोटीन्स दैट आर नेसेसरी फॉर द लाइफ. ओके, सो ये छोटे क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने अभी तक कवर किए हैं. नाउ वी विल गो फॉर द मेन थिंग. ओके, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. ओके, वन बाय वन विल गो. सो ये तीनों प्रोसेस को ऑल टुगेदर वी कॉल इट एज दिस ऑल 3 process comes under the central dogma. Okay, so central dogma means what? Central dogma is nothing but with the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the body. तो बॉडी का फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर कंट्रोल करने का काम एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल, ये जो सब चीजें है ये जीन के हेल्प से होता है. और ये जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. ओके, बट ये जो जीन्स है, ये डीएनए है, ये खुद ब खुद इट कैन नॉट कम आउट, राइट? ओके, टू कैरी द एग्जैक्ट वर्क. सो क्या करता है? इट क्रिएट्स द आरएनए, राइट? And information about protein synthesis. Synthesis means what? Preparation. So information मतलब क्या? Code. So code about protein preparation is stored in the DNA and synthesis of appropriate protein as per the requirement is necessary for the body. Okay, तो ये जो appropriate protein की जरूरत है
ओके, these proteins are synthesized by the DNA, बट ये DNA खुद नहीं बनाता. DNA creates a Xerox copy of RNA. It sends out of the nucleus, but सेल के अंदर रहता है. न्यूक्लियस के बाहर छोड़ता है बट सेल के अंदर रहता है. And this process is called as a central dogma. But this is the brief information, and इसका पूरा elaborate किया है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन में. ओके, सो सेंट्रल डॉगमा इज द मेन पार्ट. इसके अंदर अभी हम लोग पहले देखने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन. सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन. सॉरी, not the description, the transcription. Okay, so transcription we'll see. So basically forget about this now, don't focus on this, just focus over here. What is this? This is the DNA structure, right? Okay, यहाँ पे कुछ तो हुआ है, right? Something different, right? This is the concept of transcription. तो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं. बट यहाँ पे सी mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA. मतलब mRNA हम लोग प्रोड्यूस करते हैं किसके हिसाब से? एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. सीक्वेंस मतलब क्या? सीक्वेंस आपको पता है ना, 1 2 3. इट इज अ काइंड ऑफ सीक्वेंस. सेम सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज प्रेजेंट इन द DNA. सो ये चेक करो, ये जो है ना, ये दिस वन एंड दिस वन, ये DNA ही है. एंड दिस इज व्हाट द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. A for adenine, G is guanine, C cytosine, T thymine. All these nucleotides we have already covered in the first video, right? So this is the DNA structure, and ये DNA structure में जो कुछ sequence present है of nucleotide, इसके हिसाब से we are preparing the mRNA. Okay, now see one important thing over here. We are preparing RNA, mRNA. mRNA means what? Messenger RNA. RNA ही है but messenger RNA. ये messenger RNA हम लोग इधर ये न्यूक्लियोटाइड से बना सकते हैं या फिर इसके नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड से. ओके, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से. मतलब ऊपर का न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड वी कैन टेक और एल्स. ओके, दोनों का नहीं ले सकते. ओके, सो ओनली वन ऑफ टू स्ट्रैंड. सी, ये एक स्ट्रैंड है, ओके, और ये दूसरा स्ट्रैंड है. तो ये दोनों में से ओनली वन स्ट्रैंड इज गेटिंग यूज्ड फॉर मेकिंग अ mRNA फ्रॉम DNA. ओके, वन ऑफ द टू स्ट्रैंड किसका? DNA का इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस भाई? ट्रांसक्रिप्शन की. ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है? वी आर प्रिपेयरिंग mRNA. तो mRNA बनाने के प्रोसेस में DNA के दो स्ट्रैंड में से कोई एक ही स्ट्रैंड हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट? ओके, सी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA. द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA. सो दिस इज द मैसेंजर RNA जो बन रहा है अभी. ओके, इसका जो सीक्वेंस रहता है ये किसके हिसाब से कोड होगा? तो ये नीचे दिए गए DNA के कोड के हिसाब से. ओके, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ mRNA बीइंग प्रोड्यूस्ड मतलब जो बन रहा है इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटरी. इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटरी मीन्स व्हाट? इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट टू द DNA. It is always dependent to the DNA strand used for synthesis. Synthesis means what? Preparation. Okay, so, the DNA strand is used for the preparation of what? RNA. Okay, so अभी ये नीचे देखो ये strand क्या है. Okay, यहाँ पे देखो ये T है. ये T किसका है? DNA का है. और अगर ये DNA का T है तो ऊपर क्या होना चाहिए? T के अपोजिट में कौन रहता है? ऑलवेज T goes with A. Let me show you. So we have already discussed this, right?
thiamine, cytosine are the pyrimidines, adenine, guanine are the purines, right? And T always go with A and C always go with G, right? Any doubt? No, right? But यहाँ पे what we are preparing mRNA, और mRNA मैंने आपको ये भी बोला था कि mRNA में T नहीं बनेगा, मतलब ये T नहीं बनेगा, इसके अलावा क्या बन सकता है? यूरासिल, ओके, यूरासिल बनेगा, ओके। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सी T इज ऑफ DNA, नो प्रॉब्लम। तो अगर यहाँ पे T है तो T के साथ कौन रहता है? एडेनिन, दैट्स वाई mRNA में A मिलेगा हम लोग को, मतलब A बनेगा, ओके। ये C किसका है? अगेन DNA का। C है तो C के साथ कौन रहता है हर वक्त? G, राइट। यहाँ पे क्या है? DNA का G, तो mRNA में क्या बनेगा? C, mRNA का कोड। अभी DNA में क्या है? T, राइट, DNA का है, तो mRNA का क्या कोड रहेगा? कॉम्प्लीमेंट्री A, बिकॉज T के साथ A ही रहता है, राइट। और अभी यहाँ पे DNA में A है, अगर DNA में A है, राइट, तो RNA में क्या होना चाहिए? T होना चाहिए, बिकॉज A ऑलवेज विद T। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है RNA में T गेट, थायमिन गेट रिप्लेस बाय यूरासिल, तो यहाँ पे यूरासिल का कोड आएगा, जो यहाँ पे अभी अपेंड होने वाला है, ओके। सो ऑन, यहाँ पे जो कोड बनता है, ओके, यहाँ पे एक नया कोड बनता है, राइट। सो ये जो कोड है, इट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब डिपेंडेंट, अगर ये कोड नीचे नहीं रहता तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड बनता क्या? नहीं, ओके। नाउ दिस पॉइंट इज कवर्ड। बिसाइड्स, इसके साथ देयर इज अ यूरासिल इन RNA, सी दे हैव टोल्ड यू, यूरासिल इन RNA instead of thiamine of DNA. This process of RNA synthesis called as transcription. This process मतलब ये नहीं, ये सभी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ओके। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे प्रॉपरली तो यहाँ पे कोई तो बल्ब आपको दिख रहा है, राइट। ये जो आपको ग्रेइश कलर का दिख रहा है, दैट इज अ RNA पॉलीमरेज, ओके। RNA पॉलीमरेज होता क्या है? It is the enzyme, okay. Enzyme you can consider as a chemical, okay, that helps in the RNA production, and it is elongation, or its elongation of chain from a DNA template, okay. It is a elongation of the chain. ये क्या करता है? It creates the elongation, okay. ये क्या करता है पॉलीमरेज? ये DNA को तोड़ता है, मतलब ये DNA का स्ट्रैंड है तो RNA पॉलीमरेज आएगा और ये DNA के स्ट्रैंड को तोड़ेगा, ओके, और DNA के स्ट्रैंड खुले करेगा। उससे क्या होगा? RNA कैन बी, वी कैन प्रिपेयर द RNA, नॉट वी, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सेल, ओके। दिस इज द प्रोड्यूस mRNA, ओके। ये mRNA प्रोड्यूस हो गया, ओके। ये किसके अंदर हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि DNA कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? न्यूक्लियस में। अब ये जो mRNA बना है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से बाहर आएगा, ओके। सो नाउ विल सी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन वी हैव कवर्ड, राइट। अभी हम लोग है ना डायरेक्ट, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसलेशन, ओके। विल सी सम ट्रिपलेट कोडॉन का कॉन्सेप्ट ओवर हियर, ओके। सो यहाँ पे मैं स्टार कर देता हूँ, ट्रिपलेट कोडॉन। व्हाट इज ट्रिपलेट कोडॉन? सो द mRNA फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस कम्स इन द साइटोप्लाज्म। ये जो mRNA बना है ना इनटू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से बाहर आता है, ओके, सेल में आता है, ओके। सो अगर मैंने ये वाले कॉन्सेप्ट में बोला रहेगा कि ये सेल से बाहर आता है, सो इट इज रॉन्ग। ये न्यूक्लियस से बाहर, ये सब कहाँ पे है? इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के बाहर आता है, मतलब इनसाइड द सेल, ओके। मतलब इनसाइड द सेल मतलब सेल में क्या रहता है? साइटोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म में आता है। इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज, इट ब्रिंग्स द इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम द DNA, मतलब mRNA में क्या रहता है? द कोडेड मैसेज फ्रॉम द DNA, विच इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कोड, राइट। द मैसेज कंटेन्स द कोड्स फॉर अमीनो एसिड। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स बन के आए हैं ना, इनके अंदर एक कोड है, छुपा कोड, राइट। तो वो कोड हम लोग वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग एमिनो एसिड्स,
Okay, and ये amino acid, why it is required? Amino acids are usually required for preparation of proteins. Okay, so the code for each amino acid, हर एक अमीनो एसिड जो बनने वाला है अभी विद द हेल्प ऑफ mRNA, ये जो कोड है फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप एक टाइप का अमीनो एसिड बनाएगा, ये 3 का ग्रुप दूसरा टाइप का अमीनो एसिड, ये तीसरा टाइप का अमीनो एसिड. ओके, और जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स रहेंगे तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स वी आर कलेक्टिंग टुगेदर एंड देन आफ्टर वो कलेक्शन ऑफ अमीनो एसिड इटसेल्फ बिकम अ प्रोटीन. ओके, तो सो सी दिस इज द कोड बेसिकली ट्रिपलेट कोड. दिस इज द mRNA ओनली. ओके, बट वी विल टेक AUG. These are 3 nucleotides. The group of 3 nucleotide is nothing but a triplet codon for amino acid. तो इससे X वाला amino acid बनेगा, इसमें से Y वाला बनेगा, इसमें से Z वाला, इसमें से let's say कि P वाला. So these are the amino acids which are getting formed with the help of this code. और ये X, Y, Z, P. Okay, ये these are the 4 amino acid for example. So if we collect these 4 amino acids, okay, collect it together, then it will form one protein. Okay, so एक brief के example के तौर पे ले लेना. Okay, so these are the mRNA chain. Sugar phosphate backbone, ये जो दिख रहा है आपको, this is the sugar phosphate backbone. Okay, hope so this triplet codon is now clear to you. Now we'll go for translation. Okay, but before that let's remember this thing. Okay, the valuable thing. The Dr. Har Govind Khurana, a scientist of an Indian origin, has made an important contribution in the discovery of triplet codons for 20 amino acids. Altogether 20 amino acids के लिए कौन कौन से ट्रिपलेट कोडॉन अपने सेल के अंदर यूज किए जाते हैं, ये ढूंढने में हर गोविंद खुराना, डॉक्टर हर गोविंद खुराना का बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है. ओके, फॉर हिज वर्क ही हैज बीन awarded by the Nobel Prize in 1968 along with 2 other scientists. Okay, so triplet codon में इनका बहुत बड़ा योगदान था to find out the amino acid. Okay, so translation now we'll see. Okay, this is basically the second concept, this is the third concept. Okay, so translation we'll see. So each mRNA अभी जो बन के बाहर आया है means this is the cell, this is the nucleus, nucleus में DNA है, DNA में DNA के हेल्प से हम लोग ने mRNA बनाया, mRNA अभी बाहर आया है. Okay, over here. Okay, so each mRNA is made up of thousands of triplet codons. Okay, triplet codon मतलब क्या, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, ये हो गया एक ट्रिपलेट कोडन. ऐसे 1000 अगर हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल एक mRNA है, एक mRNA में 1000 ऐसे ट्रिपलेट कोडन है, तो इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड कितने हुए, 3000. ओके, एज ऑफ नाउ हम लोग खाली एग्जाम्पल 1000 का लेते हैं. ओके, एज पर द मैसेज ऑन mRNA के अंदर जैसा मैसेज है, अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द tRNA. नाउ दीज अमीनो एसिड्स कहाँ से आते हैं, विद द हेल्प ऑफ tRNA. tRNA सप्लाई करता है इनको. ओके, अभी आप बोलोगे tRNA क्या है, tRNA इज अ ट्रांसफर RNA. ओके, फॉर दिस पर्पज tRNA हैज एंटीकोडॉन. फॉर दिस पर्पज tRNA हैज anticodon. Anticodon means what? See this diagram carefully. Okay, anticodon. See, we are having this messenger RNA, isn't it? So यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, triplet codon. Now this triplet codon के लिए ऊपर वाला क्या हुआ, anticodon. मतलब this is the A, तो ऊपर क्या होना चाहिए, U. RNA का बात हम लोग का चल रहा है. Okay, if U is there, यूरासिल इज देयर, यूरासिल के साथ कौन रहता है, एरानाइन. गुआनिन इज देयर, गुआनिन के अगेंस्ट कौन रहता है, सिटोसिन. सो ये जो है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री कोड, इसी को हम लोग बोलेंगे एंटीकोडॉन.
एंटीकोडॉन. ओके, सो ये जो है एंटीकोडॉन. एंटीकोडॉन किसके पास है? टीआरएनए के पास. तो ये कौन हुआ? टीआरएनए. ओके, और टीआरएनए के टॉप में कौन है? दिस इज द एमिनो एसिड, दिस सर्कल. ओके, एमिनो एसिड. ओके, सो एमिनो एसिड किससे अटैच रहता है? टीआरएनए से. टीआरएनए क्या रहता है? इट इज अ कॉम्प्लीमेंटरी कोड टू द एमआरएनए. तो एमआरएनए को यहाँ पे अगर थाउजेंड्स ऑफ टीआरएनए है, लेट्स से कि यहाँ वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टीआरएनए, तो टीआरएनए एमआरएनए के पास आएगा, कोड मैच करेगा. इफ कोड इज गेटिंग मैच, एंटीकोडॉन मिला. सो दिस इज अ काइंड ऑफ लॉक एंड दिस इज अ काइंड ऑफ की. ओके, तो ये लॉक लॉक लॉक. ये वाला की यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, लॉक नहीं ओपन हुआ, बट यहाँ पे ओपन हुआ. सो दिस इज द एंटीकोडॉन, राइट? एंड सो ऑन amino acid get attached over here. Okay, now ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, ये बल्ब जो है ना, this is the ribosome. Okay, we'll discuss this later on, but for this purpose tRNA has anticodon. So this is the tRNA which is having anticodon, right? Having complementary sequence to the codon. कोडॉन ऑफ एमआरएनए. एमआरएनए का ये कोडॉन है, तो ये कोडॉन के अगेंस्ट जो कॉम्प्लीमेंटरी कोडॉन है वो किसके पास रहता है? टीआरएनए के पास. ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. ओके, द एमिनो एसिड्स ब्रॉट इन, किसने लाया? ब्रॉट इन बाय टीआरएनए. ओके, अमीनो एसिड जो लाया, कौन लाया? टीआरएनए. आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. ओके, मतलब ये अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड, ये दोनों कैसे ज्वाइंट होंगे? विद द पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, विद द हेल्प ऑफ आरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए. सो ये जो है, ये राइबोसोमल आरएनए है. ये राइबोसोमल आरएनए उनको अटैच करेगा. गॉट इट? सो सिंपल. ओके, सो ये राइबोसोम ही है. Okay, ribosomal RNA is helping us to attach. So see over here, these are two amino acid got attached, और ऐसा ही ये amino acid का chain बना है, और ये amino acid all together forms a protein. Such a group of amino acid bonds form a protein. Hope so this is very clear, much clear to you. Now we'll see the translocation. Okay, if you are having any doubt, just look this video 2 or 3 times. If you're still having any doubt, please talk with me on a WhatsApp group or call me immediately. Okay, translocation. The amino acids brought in by tRNA, जो amino acids brought किए जाते हैं tRNA के help से, are bonded together by peptide bond with the help of RNA. This is the upper topic which is we are carrying forward now. Okay, we are going ahead with the new topic now. During this process, ये जो प्रोसेस चालू है, ओके, कौन सी प्रोसेस? अमीनो एसिड ब्रॉट बाय टीआरएनए are bonded together by peptide bonds. During this process, what happens? The ribosome keeps on moving from one end of mRNA. So ये एक एंड है mRNA का, ये दूसरा एंड है mRNA का. So ये जो राइबोसोम है keeps on moving. ओके, keeps on moving मतलब क्या? यहाँ पे वो एक कोडॉन के पास था पहले, इसका काम खत्म हुआ, अटैच हुआ, देन राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग ओवर हियर दूसरे कोडॉन पे. दूसरे कोडॉन का टीआरएनए से मैच हुआ, अगेन इट विल मूव टू द नेक्स्ट. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अदर एंड ऑफ एमआरएनए बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन. मतलब एक एक ट्रिपलेट कोडॉन के डिस्टेंस से वो आगे जाता है. दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन. ओके, hope so now this concept is very much clear to you. Thank you.